So let's start. This is a new chapter where we are going to study vectors. So till date we have studied 3 chapters: physical world, units and dimension, and the last chapter where we have studied basic maths. So this is one more chapter which is required to build up your foundation so that we get an entry into the real physics from the mechanics. So in this chapter we'll try to finish it off in 3 to 4 lectures. So this chapter will be comprises of हम लोग इसमें पढ़ेंगे vectors, difference between vectors and scalars, what are vector scalar quantities and vector physical quantities and scalar physical quantities देखेंगे हम लोग. Then we'll see how scalars and vectors are different, how vectors are added up. We'll see the triangle law of addition, parallelogram law of addition. We'll see analytical method of addition. Then we'll move on to unit vectors. We'll look into displacement vector, position vector in the second lecture, and in the third lecture we are going to see the scalar product of vector, and the last lecture, maybe third or fourth lecture, we'll try to cover up the cross product of vector and some questions related with the vectors, which is going to enhance our concepts. So let us begin. So vectors. So vector is kind of a physical quantity where if you tell only how much the magnitude, if you tell only one thing, okay, how much, it is not going to work. You need both the things, how much and which way. Both the things you required. Apart from that, there is one more additional requirement for the vectors that we are going to see later on. But right now, for the basic level of understanding, एक kind of a system बनाने के लिए we'll understand कि vectors are कि वहाँ पे आपको you need to know how much, you need to know the magnitude और किस direction में, which way. ठीक है? When someone is telling about the vector physical quantity, 2 things are at most required: how much and which way. So we'll see it with an example, with an illustration. Okay, what is this? Suppose you are standing here and your friend is standing here. So you tell your friend, just walk, you are 100 meter away, and you just tell, just walk 100 meter and I'll meet you. Just walk 100 meter, I'll meet you. So from this person's, from your friend's perspective, there are infinite direction he can go. This is a 100 meter circle. So he's having infinite direction to go, but only one direction can produce a desired effect where he's going to meet you, where your friend is going to meet you. That is only one direction that is going to give you the desired physical effect. Desired effect के you want to meet with your friend, there is only one way, क्या उसको 100 मीटर आना पड़ेगा, and you have to specify the direction in which he has to come. Otherwise अगर आपने बोल दिया कि अरे दोस्त just come over 100 meter and I'll meet you, 100 meter इसके लिए it means 100 meter he can go in this direction, in this direction, in this direction, in this direction. अगर ये यहाँ पे 100 meter चला गया, he will be totally 200 meter away from you. So there are infinite direction for B to go, infinite direction. So only one direction, only this direction is through which your friend and you can meet. Okay, so out of infinite direction, if you want to get a specified result, if you want to get a desired physical effect, that means meeting A and B, you need to tell the direction also. Otherwise, with the magnitude, it is not going to work. Okay, so those quantities where you have to tell the magnitude along with the direction, those are the vector physical quantities. Okay, so vector physical quantities, there are infinite way to go, but one way to reach A. So you need a specified direction. So directions are like a intentions in space के this direction में मुझे जाना है, it will tell you the intentions. So for instance, if you push a door, so which side you have to push a door to open up and to close? You have to throw a ball. You have to throw a ball this side or this side or this side. Which side you have to throw a ball to get the desired effect? Suppose I'm standing here, so you have to tell me that you have to see which direction you have to throw ball so that it can come to me. Same way with the door. So door is there, so you know which direction you have to push the door कि वो door open हो जाए, and which direction you have to push the door, वो door close हो जाए. ठीक है? अगर आप किसी और direction में करेंगे तो then you will not get a desired physical effect. Same way walking is also किस direction में you are going to walk. Suppose you have to go from A to B, but you're walking in this direction, you will never reach B. You will never reach your desired location if you not follow the magnitude and the direction. So
वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटी वेयर यू नीड टू स्पेसिफाई किस मैग्नीट्यूड से जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है, देन ओनली यू कैन गेट अ डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड फिजिकल इफेक्ट. Okay, so यहाँ पे if you want your friends to come over and meet you, you have to tell him specifically you have to walk 100 meter east. 100 meter east, this is the east direction. 100 meter east you have to come. Okay, suppose another example is, see this block is there, 10 kg block is there. Suppose you want to move this block, to one position. Okay, then you have to tell which direction. So you have a force, then you have to put the force in what direction to generate a effect कि ये 1 पे जाए. If you put a force here, केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा. You have to tell the direction कि मैं इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाऊंगा, then only it will reach up to 1, which is my desired outcome. If I'm going to put a force here, it is not going to move anywhere. So direction is very much important when you are dealing with the vectors. When the physical quantities are there, where the direction is at most required to get a desired physical effect. Okay, so we'll see another one is कि अगर if I add, we'll see it in the scalars. So we'll see the difference between vectors and scalars. So in the scalar we'll see कि why the direction is not required. So if you see this 10 kg block is lying there. Okay, 10 kg block is lying at a resting position. So first thing which comes to your mind, if it's at a resting position, if it's not moving, you will see how much weight it is. You will not think of the direction. You will only see one thing is the mass, is the magnitude. You will not think of the direction कि किस direction में रखा हुआ है, ऊपर नीचे. So you just think on the mass. Then you say, okay, you put a 5 kg mass on this. Now you are interested in total mass. So you are not interested कि किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, just interested in the total mass. So total mass is, you just do a vector numeric addition. So 5 plus 10 is 15. You just do a normal, or you just apply a ordinary rules of algebra to get the final result. Okay, this total mass of this 10 plus 5 is my 15 kg. So if you add certain quantities, scalar quantities are those which does not have a direction, and where you can use the ordinary rules of algebra. With the ordinary rules of algebra, you can do some mathematical operation on the physical quantity. Same way, if there are two beakers, इसके अंदर 1 liter milk है, इसके अंदर 1 liter water है. So now if you add 1 liter water into milk, so it will get 2 liter of mixture. और इसमें से अगर आपने 1 liter बाहर निकाल दिया, now it is having 1 liter of mixture. So it is just a normal algebraic addition that you are doing. You are not doing any specific mathematical operation on this. Only ordinary rules of algebra it's been applying here. So this is a scalar quantity where normal rules of algebra is applying, where the direction is not important. Now we'll see the another case. Suppose a car is moving. So the intuition will come to me first is okay, how fast and at which direction the car is moving. So car is moving means, and I wanted to know where will the car in the next 10 minutes. So if I know the magnitude only, so the car can be in infinite direction. किसी भी direction में हो सकती है car in the next 10 minutes. So 10 minutes में car can be in any of this direction. So if I want the car to reach here, so I need to specify the car is moving with this speed and with this in this direction. So to generate any desired effect, I need direction also. Okay, so again this is the magnitude circle where it is having the infinite direction. I need a desired physical effect. For desired physical effect, I need to tell the specific direction also. And one more thing is vector and scalar. In the scalar, we do the ordinary rules of algebra, but in vectors, vector quantities cannot be added with the ordinary rules of algebra. There is a specific rule which is a law of parallelogram of addition. Through this only we do a addition on the vectors. Okay, so how vectors can be differentiated from the scalars? So it should have a magnitude, it should have a direction, because there are physical quantities which have magnitude and direction, plus they follow ordinary rules of algebra. They follow ordinary rules of algebra. They have a direction, magnitude भी होगा, but ordinary rules of algebra से उसमें addition subtraction होगा. But यहाँ पे जो vector होता है, they got added through a law of parallelogram of addition. So it is one of the most important requirement for the vectors. Okay, so ये कैसे होता है law of parallelogram of addition? के normal case में suppose a car is moving with 10 km per hour, and suppose
ए कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन 10 किलोमीटर पर आवर. अगर विंड की वेलोसिटी 0 है तो इट इज़ विल सी के कार इज मूविंग विद 10. अगर आई से कि विंड इज गोइंग विद अ 2 किलोमीटर पर आवर की 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. नाउ आई हैव टू स्पेसिफाई द विंड की डायरेक्शन. अगर विंड की डायरेक्शन ये है और विंड की डायरेक्शन ये है और अदर विंड की डायरेक्शन ये है, सो इन ऑल थ्री केसेस वी हैव टू अप्लाई अ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन in all three cases to get the desired result. So अगर इस डायरेक्शन में है so it is totally opposite direction. हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन उसकी इन द कमिंग सेशन देखेंगे कि किस तरीके से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन होता है, बट हेयर आई एम गिविंग यू जस्ट द इंट्यूशन. सो यहाँ पे कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड इज 2. सो यहाँ पे जो नेट कार की वेलोसिटी हो जाएगी वो 8 में इस डायरेक्शन से मूव कर रहा होगा. सेम वे यहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक कि अगर 10 है 2 है तो आई गेट द 12 एज ए आंसर, जैसे कि हर जगह आता है, या फिर 8 एज एन आंसर. यहाँ पे ऐसा नहीं है. अगर यहाँ पे 2 इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विंड, सो आई गेट अ डिफरेंट आंसर. सॉरी, इस डायरेक्शन में अगर 2 विंड फ्लो कर रही है, सो आई गेट अ रिजल्टेंट ऑफ दिस इज माई पैरेललोग्राम के उसका डायगोनल, दिस शोज द रिजल्टेंट. तो कार विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद सम मैग्नीट्यूड. ओके, सेम वे the car is if the wind is blowing in this direction and car is also moving in this direction, so with the parallelogram law of addition we will get 12 speed. So how the speeds are coming 8, 12 and the speed is coming up. अगर मेरी velocity की direction ये है, car की direction ये है, then I'm getting this speed as the resultant speed of the car. How we are getting it, that we are going to see it when in the coming session, where we are going to study the vector addition through triangle law and the parallelogram law. But it is not added like the way scalar quantities is been added, like 10 plus 5 15. It is not like that. और यहाँ से मैंने 2 kg यहाँ से मैंने 5 kg हटा दिया तो it is 10. It is not like that. We have to consider the direction here. So to consider the direction, we have seen this example कि अगर कार इस स्पीड से जा रही है, विंड इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, so all the directions is adding up or subtracting up in a manner that it is creating a different effect in the vector quantity of car, velocity of car. Okay, so we'll see those how it is affecting, how the addition has been happening. Okay, so before going into it, there we have seen why this law of parallelogram of addition is one of the key factor for the vector, because there are physical quantities where magnitude is there and where direction is there. For instance, time is having the direction, this forward moving direction, and plus you can add minus the time in the same way. You can do it with the normal rules of algebra. Same way pressure means suppose ये film है, यहाँ पे एक pressure P1 आ रहा है, यहाँ पे pressure P2 आ रहा है, so you can get the direction, you are having the direction of pressure, but with the ordinary rules of algebra, P1 minus P2 is the net pressure. You can get it easily. Okay, same way current is, this is a junction, current यहाँ से आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, यहाँ पे I2 करंट जा रहा है, यहाँ से I3 करंट आ रहा है. So यहाँ पे आ जाएगा I1 plus I3 is equals to I2. So here also we are doing normal rules of algebra. We're just doing normal ordinary rules of algebra लगा के we are getting the result. And here there is a direction also. So magnitude और direction दोनों हैं यहाँ पे, but we are not using law of parallelogram of addition. So that is the necessary requirement for the physical quantity to be a vector. Okay, now how do we represent the vector? So vector can be represented with this arrow. So this is called tail, this is called head. Okay, and this is called, this length is called the magnitude. So if this is my one vector, if this is my 2 times of this vector, this is my 3 times of this vector. So these all vectors are having the same direction, but their magnitudes are keep on changing. Okay, so these are not equal vectors because their magnitude are changing. Okay, so now this vector, this vector, this vector, this vector, they all are the same vector. They are parallelly placed, only parallelly displaced, but their length are same and their direction are same. This is also one, this is also one, this is also one, this is also one. The magnitude of all the vectors are same, plus the directions are same. Okay, so equality क्या आती है कि when A is equal to B is equal to C, इन तीनों की direction same है and the magnitude is also same. It can also be seen कि मैंने A को यहाँ से उठा के यहाँ पे transfer कर दिया. इसको I have parallelly moved B. I have parallelly moved A
from here to B. I have parallelly moved A from here to C. It is like a parallel movement of vector. Parallelly मैंने इसको यहाँ से यहाँ move कर दिया, यहाँ से यहाँ move कर दिया. So you can easily move the vector parallelly. ठीक है. So same magnitude and direction parallel. Vector can be moved parallelly to itself. So equality के लिए क्या है? Same magnitude and direction. Okay. Now next is we have seen next is angle. So angle कैसे डिफाइन करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में? सपोज एक वेक्टर मेरा ये वेक्टर है A, ये वेक्टर है B. So there are two angles in between. ये एक एंगल हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया, ठीक है, बड़ा वाला. सो ऑलवेज वी कंबाइन टू वेक्टर टेल टू टेल फर्स्ट. ठीक है, ये टेल हो गई वेक्टर A की, ये टेल हो गई वेक्टर B की. टेल टू टेल पहले ज्वाइन कर रहा हूँ हमने, ठीक है, टेल से टेल ज्वाइन कर दिया. अब इन दोनों के बीच में जो मिनिमम स्मॉलर एंगल है, दिस इज माय स्मॉलर एंगल, दैट इज अ एंगल बिटवीन द वेक्टर. ठीक है, किसी भी उसमें दो एंगल होंगे, एक तो स्मॉलर एंगल, एक ये बिग एंगल. सो ऑलवेज द स्मॉलर एंगल इज माय एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. इस वेक्टर में देखते हैं ए ये हो गया, बी ये आ गया. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेड ऑफ दिस इज ज्वाइनिंग विद द टेल. सो क्या करना है यहाँ पे, पहले मेरे को इसको यहाँ पे इसके टेल टू टेल ज्वाइन करना है. दिस इज माय ए वेक्टर, दिस इज माय बी वेक्टर. अब यहाँ पे मेरे दो एंगल हो गए, एक ये एंगल और एक ये बड़ा वाला एंगल. सो ऑलवेज द स्मॉलर एंगल. सो दिस इज माय एंगल बिटवीन द वेक्टर. दिस इज माय एंगल बिटवीन द वेक्टर नाउ. ओके, यहाँ से मैंने यहाँ पे जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे मूव किया, ये इक्वली वेक्टर है बिकॉज the magnitude also same and the direction also same. I just parallelly move the vector, right? So equality की condition clear हो गई कि same direction में and same magnitude में. So इस vector को I can move parallelly in infinite way. Same way parallelly I can move this vector in any direction, in any not in direction, in any parallelly I can move this vector. So all these vectors are the equal to A. all these vectors are equal to A. इनका सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन शुड बी दिस ओनली. तो ये सारे वेक्टर इज इक्वल टू A. अब हम लोग हाउ डू वी डिफाइन अ वेक्टर. सपोज ये मेरा OA वेक्टर है, दिस इज माय OA वेक्टर, दिस इज माय OA वेक्टर. सो टू वेज हेयर वी कैन डिफाइन. वन इज वी कैन सी थ्रू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ and west. Another one is we take the angle from the positive x-axis clockwise, anti-clockwise. Positive, this is my positive x-axis और यहाँ से I'll calculate from the anti-clockwise like this. I'll take it from the anti-clockwise. So पहले देखते हैं ये OA वेक्टर हो गया सपोज मेरा. तो OA वेक्टर is my, इसका magnitude is 3 unit and 30 degree from the plus x. This is my 30 degree from the plus x. Or I can say this vector is north of east. This is my east. ईस्ट के ऊपर वाली पोजीशन दिस इज़ माई नॉर्थ, ये सारी पोजीशन. तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज़ 30 डिग्री. ठीक है, नॉर्थ अगर ये यहाँ पे होता, नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज़ 45 डिग्री. अगर ये यहाँ पे होता, दिस इज़, ये क्या है, ये वेक्टर इज साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साउथ में है. तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड साउथ ऑफ ईस्ट. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेक्टर. तो यहाँ पे आएगा 3 मैग्नीट्यूड हो गया एंड इट इज़ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. नाउ आई कंसिडर दिस वेक्टर. अगर मैं ये वेक्टर ले लूँ OB क्या है यहाँ पे, इधर आई कैन से इट इज़ 3 in magnitude and 120 degree from plus x. ठीक है, 120 degree from plus x. Or I can say it is north of west. It is 60 degree. This is 60 degree. 60 degree north of west. ठीक है, यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ एंगल. ये वाला एंगल मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ प्लस x वाला, और नॉर्थ ऑफ वेस्ट वाला आई एम मेजरिंग इट फ्रॉम हेयर. दिस इज 60 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ ऑफ वेस्ट. ओके, ये वेस्ट साइड है मेरी और वेस्ट के नॉर्थ में 60 डिग्री है. Now I'll see this vector. So this vector is there with me. अब ये वेक्टर क्या है, प्लस x से दिस वेक्टर इज 210 डिग्री, दिस वेक्टर इज 210 डिग्री. ओके, सो आई कैन राइट इट डाउन. दिस मैग्नीट्यूड इज 521 डिग्री फ्रॉम प्लस x. और अनदर वे इज टू राइट इट डाउन. दिस इज साउथ ऑफ वेस्ट, दिस इज माई वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज माई साउथ. दिस इज साउथ ऑफ वेस्ट कितना है, 30 डिग्री. साउथ ऑफ वेस्ट 30 डिग्री बिकॉज यहाँ से यहाँ तक 180 प्लस 30 इज 210. सो दिस इज 30 डिग्री. दिस इज साउथ ऑफ वेस्ट. आई कैन राइट इट डाउन साउथ ऑफ वेस्ट. सपोज अगेन दिस, अगर मेरे पास ये इस क्वाड्रेंट में इफ़ आई एम हैविंग द वेक्टर, तो इस वेक्टर को इस तरीके से लिख सकता हूँ. दिस इज -45 डिग्री ऑफ प्लस एक्स इस डायरेक्शन से. दिस इज प्लस एक्स डायरेक्शन -45 डिग्री. और आई कैन राइट इट डाउन -45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट. This is my east, south of east, -45 degree. So in this way I can represent my vectors. Clear? So vector is having a direction which is from tail to head and
ये जो इसकी है दैट टेल्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड. सो दिस वेक्टर is having a more magnitude than this vector but having the same direction. Okay, this vector is smaller magnitude but having the same direction. Equality of vector देख लिया कि parallelly अगर मैं किसी vector को shift कर रहा हूँ and not changing, उसका magnitude नहीं change हो रहा, so I can say this vector is equal. Then we have seen the angle between the vector, tail to tail connect करना है और smallest angle check करना है उसमें. Okay, so now we see suppose it's a scalar, it's a constant multiplication or the scalar it's a scalar multiplication with a vector. Suppose lambda is some value like 3 or 4, ठीक है, and a is my vector. If I say 3a, a की direction ये है, if I multiply it by 3 that means this vector magnitude will get multiplied by 3. ठीक है, अगर ये मेरा ये लैम्डा की वैल्यू मेरी -1 हो जाए, -1 मीन्स के नाउ माई वेक्टर इज -a. ठीक है, नाउ दिस इज माई, इफ दिस इज माई a वेक्टर, दिस इज माई 3a वेक्टर एंड दिस विल बी माई -a वेक्टर, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इफ आई मल्टीप्लाई इट बाई माइनस लैम्डा. ओके, प्लस लैम्डा अगर मैं इसमें कर रहा हूँ तो लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा उसका, अगर माइनस लैम्डा कर रहा हूँ तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन plus lambda into lambda times हो जाएगा वो vector. So that is how the scalar multiplication happens with the vector. Again another example is कि if I am having b vector in this direction, ठीक है, if I do -1 multiplication, okay, so minus b will be the this vector. Okay, same magnitude same रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बट आई हैव चेंज द डायरेक्शन आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद -1 से मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी. सो दिस इज द डायरेक्शन of minus b vector, right? Now we move on to the topic of addition of vectors. Like in the beginning we have got the intuition ke to say any physical quantity is a vector we need 3 things. It has to have a magnitude hona chahiye usme, और second thing is उसमें direction honi chahiye, and the third thing is it should follow a law of parallelogram of vector. ठीक है, law of parallelogram of addition of vectors. So we'll see in this section के क्या होता है वो. ठीक है, so we'll start with an illustration. Okay, suppose ये water है, this is 2 liter of water and this is my milk, this is 1 liter of milk. 1 liter milk मैंने इसमें ऐड कर दिया, we pour milk in the water, I've got a total mix of 2 plus 1 is 3, I've got a total mix of 3. सिंपल नॉर्मल ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा से लग रहे हैं, नॉर्मल एडिशन हो रहा है. नाउ आई रिमूव 1 लीटर ऑफ मिक्सचर, इस मिक्सचर से 1 मीटर रिमूव कर दिया, नाउ आई एम हैविंग 2 लीटर ऑफ मिक्सचर. सो नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा लग रहा है प्लस माइनस का, वी डोंट सी द एनी डिफरेंट रूल्स लाइक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, सिंपल नॉर्मल रूल लग रहा है. ठीक है, नाउ हेयर इफ दिस ब्लॉक इज देयर, ओके, नाउ हेयर यहाँ पे मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहाँ पे मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज नॉट मूविंग. ओके, अगर मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहाँ पे भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, द ब्लॉक स्टार्टेड मूविंग, 20 न्यूटन की फोर्स. यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का 10-10 है और यहाँ पे भी 10-10 है, बट इट इज़ गिविंग मी जीरो रिजल्ट, द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, हेयर द ब्लॉक इज मूविंग. सो हाउ दिस एडिशन इज हैपनिंग दैट वी आर गोइंग टू सी. सो दिस इज माई वेक्टर एडिशन. ठीक है, when we add vector a plus vector b, it is giving me vector c. This is my vector addition, and a plus b is equals to c. This is not my normal addition. So a plus b, so 10 vector is giving you 20 vector, and 10 vector and 10 vector, this also can also give you 0 as a resultant. But here 10 plus 10 will always give you 20. 10 plus 10 will always give you, but if we have the vector consideration, तो वहाँ पे डायरेक्शन का भी कंसिडरेशन आ जाता है. वी हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन देयर. इट 10 plus 10 वेक्टर कैन बी 0 और 10 plus 10 वेक्टर कैन बी 20. इट कैन लाई बिटवीन 0 to 20. ओके, बट हेयर इन नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा 10 plus 10 will give you the 20 only. Okay, so remember a vector plus b vector is equal to c vector. It is not equal to a plus b is equals to c. ये यहाँ पे स्केल नॉर्मल रूल्स लग रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर्स रूल्स लग रहे हैं. तो अब हम देखते हैं व्हाट आर दोस रूल्स ऑफ अलजेब्रा. सो फर्स्ट इज रूल्स ऑफ एडिशन. तो फर्स्ट इज ट्रायंगल रूल ऑफ लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. सो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, दिस इज माई वेक्टर बी. तो पहले तो क्या करना है मेरे को, आई हैव टू टेक दिस टेल एंड आई हैव टू जॉइन इट विद द हेड, टेल टू हेड. सेकेंड वेक्टर का टेल
फर्स्ट वेक्टर के हेड पे ज्वाइन कर देना है. सो दिस इज माई फर्स्ट वेक्टर, दिस इज माई सेकेंड वेक्टर. ठीक है, दे आर गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन. ठीक है, सेम. जो थर्ड वेक्टर होगा दैट इज क्लोजिंग दिस ट्राइंगल विद इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, द थर्ड वेक्टर जो इसका रिजल्टेंट होगा दैट इज क्लोजिंग द वेक्टर विद opposite direction. Okay, so this is what we call a triangle law of vector addition. So here R is my A plus B. This is my triangle law of vector addition. So if this is there A और ये मेरा B है, ठीक है, and this is my A. तो पहले तो मुझे क्या करना है, I have to bring it head to tail. तो मैं इसको parallelly move करके I'll bring it here. So ये मेरा A हो गया फिर. ठीक है, this is my A. I parallelly moved it. So and now this is my resultant A plus B, and this is my resultant which is A plus B. So दो वेक्टर दो ट्राइंगल के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है इन वन डायरेक्शन. जो थर्ड साइड है दैट इज द रिजल्टेंट व्हेन इट्स मीटिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ A to the end of the B. Okay, from the start of A to the tip of B, when it is adding, the third side of the triangle is giving me the resultant. So that is what the triangular law of addition said. Second is the parallelogram. यहाँ पे क्या करते हैं हम, टेल से हेड को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे टेल से टेल को ज्वाइन करेंगे, टेल से टेल को ज्वाइन करेंगे. यहाँ पे टेल ऑफ बी इज ज्वाइनिंग विद द हेड ऑफ ए, यहाँ पे टेल ऑफ बी इज ज्वाइनिंग विद द टेल ऑफ ए. तो इसको पैरेलली मैं मूव करके, आई नो यू कैन मूव इट पैरेलली इसको मूव करके यहाँ पे ले आया. सो सेम वेक्टर आ गया. अब नाउ आई विल सी द एंगल बिटवीन द मिनिमम एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन देम. ओके, अब इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट होगा दैट इज माई डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम. दिस इज माई आर. जो इस पैरेललोग्राम दोनों साइड्स, अगर मेरे पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल ऑफ दीज टू साइड्स. ओके, सो दिस इज व्हाट माई parallelogram law of addition said. So this is my A, I parallelly moved it to B. Now resultant is coming as a diagonal of this parallelogram with these two sides. Okay, so diagonal R, vector sum is this. Vector sum is R is my A plus B. Okay, here remember tail to tail I am adding. Right, A and B are representing the parallelogram side, and here A and B are presenting the triangle side. Clear? और बाकी ये दोनों सेम है. इफ़ यू सी दिस डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं और दोनों रिजल्टेंट सेम ही देंगे. अगर इसको मैं मूव करके यहाँ पे ले आऊँ एंड देन आई ऐड इट, दिस इज माई ट्राइंगल. ठीक है, अगर मैं इसको मूव करके टेल टू टेल ऐड कर दूँ, ये यहाँ पे आ गया. नाउ दिस इज माई डायगोनल. ठीक है, सो सेम वैल्यू देगा, सेम रिजल्टेंट आएगा. आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. बोथ ट्राइंगल लॉ एंड द पैरेललोग्राम विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. ओके, सो अगर मेरी ए की वैल्यू 10 है नॉर्मल, उसमें 10 kgs, और बी की वैल्यू मेरी 20 kg है. सो नॉर्मल एडिशन में मेरा a प्लस बी इज माई 30 kg. नाउ अगर मेरे पास फोर्स है a पे इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स है दैट इज 10. F1b है मेरी इस डायरेक्शन में 20. नाउ विल अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, टेल टू टेल ऐड करेंगे. दिस टेल विल पुट इट हेयर. सो दिस 10, I'll put the tail here. This is my 20. So resultant कितना होगा इन दोनों का? इन दोनों का resultant will be in this direction. It is 10. 20 minus 10. This is 10. 10 will be the resultant in this direction. So that's how the parallelogram and the triangle law of addition in vectors work. So we'll see now the subtraction. How the subtraction work. Subtraction is nothing but कि आप एक वेक्टर को, अगर आपने a माइनस बी वेक्टर है आपके पास, तो आपने क्या किया है, इस बी वेक्टर को पहले डायरेक्शन इसकी उल्टा दी, अपोजिट कर दी डायरेक्शन, एंड देन यू एड इट. ओके, सो दिस इज लाइक ए प्लस, यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बी, यू मल्टीप्लाई इट विद बाय स्केलर -1. फर्स्ट यू मल्टीप्लाई इट विद -1, और उसके बाद यू जस्ट टेकन द आपने पैरेललोग्राम और द ट्रायंगल लॉ आपने अप्लाई कर दिया. ठीक है, इसको इस तरीके से करते हैं. सपोज फॉर इंस्टेंस
सेम एग्जांपल, ए ये है, बी ये है मेरा इस डायरेक्शन में, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी मेरा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दिस इज माई माइनस बी। अगर मैं इस पर ट्राइंगल लॉ कर दूँ तो ए ये आ गया, बी आ गया, इसको मैं पैरेलली यहाँ पे मूव कर दिया, सो दिस इज माई रिजल्टेंट, दिस इज माई रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी। अगर मेरे को इसको पैरेललोग्राम में करना है तो दिस इज माई बी, दिस विल बी माई माइनस बी, और इन दोनों का मेरा दिस इज माई रिजल्टेंट इज द डायगोनल ऑफ ए एंड बी। ओके, नाउ एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच का, दिस इज माई माइनस बी, एंगल कैन बी दिस वन और दिस one, but we consider the minus one, we consider the smaller one, so smaller angle will be this one, this will be the angle between A and B. So this is what we have done. So first we join it by tail to tail parallelogram के लिए tail to tail join किया हमने, इसकी tail यहाँ पे ले आए, so this will give me A plus B ये दे देगा, but यहाँ पे ये बड़ा वाला डायगोनल A plus B भी देगा, छोटा वाला डायगोनल A minus B देगा, ठीक है। और माइनस बी क्या होगा, आई अपोजिट द डायरेक्शन, और इन दोनों का जो डायगोनल आएगा दैट इज़ माई ए माइनस बी पैरेललोग्राम से। सेकंड इज, अगर मैंने हेड टू टेल जॉइन किया, ठीक है, यहाँ पे आई जॉइन इट बी एंड आई जॉइन टेल ऑफ बी विद द हेड ऑफ ए, ये, एंड दिस इज माई रिजल्टेंट। ओके, दिस इज विद द ट्राइंगल लॉ। नाउ वी एक्सटेंड दिस ट्राइंगल लॉ इनटू द पॉलीगन लॉ। ट्राइंगल लॉ की जो लॉजिक है हमारा, विल अप्लाई इट ऑन द पॉलीगन लॉ। ट्राइंगल लॉ का लॉजिक क्या है, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है ट्राइंगल की, जो थर्ड साइड जो होगी, जो रिजल्टेंट शो करेगी, दैट इज अपोजिट, जो स्टार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन से एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वेक्टर से लास्ट ऑफ सेकेंड वेक्टर जा रहा है, ठीक है, टेल ऑफ हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर जा रहा है, उसको ज्वाइन करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो यू विल गेट द रिजल्टेंट। ओके, सो यहाँ पे भी यही है, अगर मेरा ये है डिफरेंट पॉलीगन है, this is like this. Okay, now this is my A vector, B vector, C vector, D vector and E vector, A B C D and E. So polygon law may be like the same, we'll extend the logic of triangle law के जो last है, the last resultant है, that is starting from the first vector and it is closing down the vector in the opposite direction, और जो last vector का head है उससे close करेगा, so this is my resultant। ठीक है, सेम हमने वेक्टर जो ट्राइंगल लॉ का था उसका ही एक्सटेंशन कर दिया। ट्राइंगल में ये होता था, दिस इज माय ट्राइंगल लॉ, और थर्ड साइड मेरा जो क्लोज करती थी बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द एंडिंग ऑफ सेकंड वेक्टर, और ये सेकंड की जगह यू कैन हैव एन वेक्टर्स, यू कैन हैव एन वेक्टर्स की क्लोजिंग, दिस विल शो द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे भी वही है, सपोज मेरे पास 4 वेक्टर है, सो बिगिन ऑफ ए के बिगनिंग से टिल द tip of last vector can be B, C, D, E, F, G or any vector, beginning of A till the tip of the last vector. So suppose मेरे को A और B का रिजल्टेंट चाहिए, this will be the triangle law, ठीक है। Now if I am having A, B and C, ठीक है, और ये सारे within एक मतलब सीरीज में होने चाहिए, दिस डायरेक्शन, इनके डायरेक्शन यही होनी चाहिए, इट इज़ नॉट लाइक डायरेक्शन इज चेंज, सो दे शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। सो A, B, C इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नाउ रिजल्टेंट इज ए से स्टार्ट होगा एंड द टिप ऑफ सी तक जाएगा, दिस विल बी माई रिजल्टेंट। ओके, सेम अगर मेरे पास वेक्टर है ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे भी सेम ए से स्टार्ट होगा एंड द टिप ऑफ डी, दिस विल गिव मी द रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी एंड डी। सो दैट इज अ एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ टू एनी पॉलीगन। सो हेयर ऑल्सो अगर मेरे पास A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, 4 5 6 7 8 एंड अप टू n मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो नाउ मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, आई स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर एंड टिल द टिप ऑफ लास्ट वेक्टर, सो दिस विल बी माई रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू an-1, दिस इज an-1। ओके, नाउ अगर ये वेक्टर आके फिनिश यहीं पे ही हो रहा है, इफ द वेक्टर इज फिनिशिंग इट अप हेयर ओनली, सो दिस is a minus r, this vector minus r, so if this vector is minus r, so this has become a cyclic polygon. So starting from here and ending from here, that means इसका magnitude 0 है and it's get a point vector only, ठीक है, r की वैल्यू 0 हो गई, it's get a point vector। so overall अगर मेरा polygon closed polygon है ऐसे, अगर it is my closed polygon in one direction, so इसका overall resultant will be it will be 0। so A1 plus A2 plus A3 up to AN is equals to 0। so ये
इन द साइक्लिक ऑर्डर में है तो यू विल गेट इट 0. तो ये आपको इसलिए हेल्प आता है अगर आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं. ए इज सम वेक्टर, बी इज सम वेक्टर एंड सी इज सम वेक्टर. नाउ यू हैव टू सी वेदर दिस वेक्टर इज मेकिंग ट्राइंगल और नॉट. सो आपको क्या करना है, साइक्लिक ऑर्डर में ए प्लस बी प्लस सी, वेदर इट इज कमिंग 0. इफ इट्स कमिंग 0 देन इट इज फॉर्म अ ट्राइंगल. और यू कैन सी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी. ठीक है, इट शुड बी लाइक दिस. तो आपको ये चेक करना है. ठीक है, हेयर जो ये है ये सारा a प्लस बी प्लस सी, दीज आर ऑल इन द सेम साइक्लिक ऑर्डर. ठीक है, और यहाँ पे जो a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, यहाँ पे जो सी होगा दैट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी के एडिशन का, जो वेक्टर एडिशन का, दैट इज़ अ रिजल्टेंट. तो अगर आपको चेक करना है वेदर द 3 वेक्टर्स आर स्केलर आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल और नॉट, सो यू हैव टू चेक इट कि उनकी 2 की साइड थर्ड के बराबर है या नहीं है. जस्ट हैव टू चेक दिस. ओके, वेक्टर एडिशन ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड और नॉट. दैट इज़ अ वे टू चेक इट. ओके, इफ़ यू हैव टू चेक कि 3 वेक्टर हैं वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो दिस इज़ व्हाट माय पॉलीगन लॉ इज. सो हमने देखा ट्राइंगल लॉ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी हैव 2 वेक्टर्स, वी डू द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर. ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर 2 वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑफ ट्राइंगल, जो थर्ड वेक्टर है इन द साइक्लिक ऑर्डर इन द सेम ऑर्डर, जो थर्ड है इन द अपोजिट ऑर्डर में जो दोनों को ज्वाइन करेगा फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वेक्टर टिल द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर, जो दोनों को ज्वाइन करेगा, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी. सो दिस इज माई रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स. पैरेललोग्राम क्या कहता है कि मेरे को ए और बी को अगर ऐड करना है वेक्टोरली, तो ए और बी रिप्रेजेंट, पहले मेरे को टेल टू टेल कनेक्ट करना है. ठीक है, एंड नाउ ए एंड बी रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ए पॉलीगन इज व्हाट, पैरेललोग्राम. तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट इज माय रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी. ओके, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, आई जस्ट मल्टीप्लाई द वेक्टर विद -1 वैल्यू, चेंज इट्स डायरेक्शन एंड डू द सेम वे टू फॉलो द सेम पैरेललोग्राम लॉ एंड द ट्राइंगल लॉ. देन द पॉलीगन लॉ क्या है, दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ के अगर मेरे मल्टीपल साइड्स हैं इन द सेम साइक्लिक ऑर्डर, तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वेक्टर टिल द टिप ऑफ लास्ट वेक्टर, उसको अगर मैं जो ज्वाइन करूँगा दैट इज माई रिजल्टेंट ऑफ ऑल द साइड्स. ओके, नाउ सम इम्पॉर्टेंट थिंग, वन इज के रिजल्टेंट ऑफ 2 अनइक्वल वेक्टर कांट बी 0. ठीक है, 2 अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कैन नेवर बी 0. सो अगर ये वेक्टर 1 है और ये वेक्टर 2 है, अगर ये दोनों इक्वल है देन ओनली द रिजल्टेंट विल बी 0. अगर ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर छोटा है या बड़ा है तो इनका रिजल्टेंट कैन नेवर बी 0, बिकॉज ये वेक्टर की कितनी डायरेक्शन हो सकती है, दिस स्मॉल वेक्टर कैन बी हैविंग दिस ऑल डायरेक्शंस. ओके, दिस ऑल डायरेक्शन, ये सारी डायरेक्शन हो सकती है इनफाइनाइट, बट एक ही डायरेक्शन है ये वाली जो इसके अपोजिट में होगा ये, तभी वो उसको माइनस कर पाएगा. अगर दोनों अनइक्वल हैं तो कभी ये दोनों वेक्टर 0 नहीं हो सकते. अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इस डायरेक्शन में, केवल ये अपोजिट डायरेक्शन में, इट विल नलीफाई दिस वेक्टर एंड इट विल गिव मी द 0 आंसर. ओके, सो स्मॉलर है या बिगर है तो इट कैन नेवर गिव मी द 0 आंसर, अनइक्वल वेक्टर. सेकंड इज अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर मीन्स के एक सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं. सिंगल प्लेन मीन्स दिस स्क्रीन की प्लेन में लाई कर रहा है, तो 1 वेक्टर ये हो गया, 1 वेक्टर ये हो गया, 1 वेक्टर ये होगा. ठीक है, इफ दे आर इन द साइक्लिक मैनर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. इफ दे आर इन द साइक्लिक मैनर A, B and C, then it is a 0, then their resultant is 0, because resultant बिल्कुल जो रिजल्टेंट कैसे आएगा, स्टार्ट ऑफ दिस टिप ऑफ दिस इट इज़ 0 ना, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो इट इज़ अ 0, और इट कैन बी अ नॉन 0, 1 2 3 A B C and this can be the D. ओके, सो 3 वेक्टर को प्लानर में इट कैन बी 0, इट कैन बी नॉन 0. अगर वो साइक्लिक है दिस इज माई रिजल्टेंट, अगर वो साइक्लिक है तो 0, अगर वो साइक्लिक नहीं है तो नॉन 0. नाउ द थर्ड वन इज के अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकते. ठीक है, सो नॉन कोप्लेनर वेक्टर मीन्स के दे आर नॉट इन द सेम प्लेन. सपोज ए ये है, बी ए है और सी ए है, बट ये जो सी है ना, दैट इज यू जस्ट विजुअलाइज के सी इज नॉट इन दिस स्क्रीन, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन. ठीक है, ए और बी स्क्रीन के अंदर है, सी यू कैन टेक इट इज़ कमिंग सम 90 डिग्री आउट ऑफ स्क्रीन, ऐसे ऊपर की साइड में आ रहा है. सो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहाँ से उस सी की टिप तक जाएगा, और वो सी की टिप तक जाएगा, सो दैट कैन नेवर बी 0. सो अगर 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर है दैट कैन नेवर बी 0.
Okay, so these are three important properties. Now we'll see properties of vector addition. One is commutative property, which we call a order of addition. अगर मैं a को b के साथ ऐड करूँ और b को a के साथ ऐड करूँ, both will give me the same result. So this is a, this is my b. If I add a plus b, it is going to give me the same result, and b plus ab add करूँ तो it is going to give me the same result. Okay, same with the associative property, which is called a grouping property. Grouping property में क्या होता है कि if I add a vector a with b plus c, पहले मैं b plus c को ऐड कर लूँ, ठीक है. So अगर मैं सपोज ए बी एंड सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी. सो पहले मैं ए और बी को ऐड कर लूँ, सो दिस इज़ माई सी वेक्टर. अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लूँ तो ये आ गया, तो सेम रिजल्टेंट आ रहा है. दूसरा, अगर मैं बी और सी को ऐड करूँ तो ये आ गया. अब इसको और इसको बी और सी को ऐड. सो मीन्स कि ग्रुपिंग में मेरा क्या होता है कि आई कैन ग्रुप इट इन अ मैनर कि बी और सी को पहले ऐड करके, उस बी और सी को ऐड करके जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है, इफ़ आई एड इट टू ए एंड, और या फिर ए और बी को ऐड करके जो इसका रिजल्ट आ रहा है, इफ़ आई एड इट टू सी, सो बोथ विल गिव मी द सेम रिजल्ट. सो ग्रुपिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. यहाँ पे ग्रुपिंग से फ़र्क नहीं पड़ेगा. सेम वे यहाँ पे ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं ए से बी की तरफ ऐड करूँ या बी से ए की तरफ ऐड करूँ, सो ऑर्डर ऑफ एडिशन से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, next we'll see some questions. Just one second, I have some water. So now we'll see some questions on the vector addition. एक दो क्वेश्चन देखेंगे वेक्टर एडिशन पे, और उसके बाद विल सी द वेक्टर एडिशन इन द एनालिटिकल मेथड, ठीक है. उसका मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देखेंगे. सो सपोज एक सर्कल में वेक्टर इज मूविंग, यहाँ पे उसकी स्पीड v है, यहाँ पे vb है, यहाँ पे vc है. तो स्पीड तीनों जगह सेम है 20, बट डायरेक्शन चेंजेस, दैट मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है. मुझे क्या निकालना है, VAC एंड VAB, ठीक है. वी ए से सी में कितना चेंज हुआ और वी ए से बी में कितना चेंज हो रहा है. सो वी ए सी क्या होता है मेरा, वी ए सी इज वी सी माइनस वी ए. वी ए सी इज वॉट, वी सी माइनस वी ए सी. ए से सी कितना चेंज हो रहा है, वी सी माइनस वी ए. नाउ वी ए इज माई दिस डायरेक्शन, हेयर इट इज़ माइनस वी ए, सो आई अपोजिट दिस डायरेक्शन. सो दिस इज अपोजिट करूँगा तो मेरी वी ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और वी सी की डायरेक्शन मेरी ऑलरेडी ये है. तो नाउ माई रिजल्टेंट विल बी टोटल दिस. तो माई रिजल्टेंट विल कमिंग आउट टू बी एडिशन ऑफ दिस इन दिस डायरेक्शन 40. ओके ओके. सो वी ए पहले यहाँ पे था, फिर वो टर्न अराउंड होके इधर की साइड हो गया, ठीक है. नाउ वी हैव टू सी के कितना चेंज आया वेलोसिटी में. वी सी ए कितना चेंज आया, अगर मेरे को वी ए सी निकालना है तो वी सी माइनस वी ए इतना चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. अब वी सी प्लस माइनस वी ए मैंने कर दिया, अब माइनस वी ए की डायरेक्शन इधर की साइड हो जाएगी. सो दिस इज़ माई वी सी और ये वी ए हो गया, एंड आई विल डू द रिजल्टेंट ऑफ दिस इज सिंपल द एडिशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. इट इज़ एंड द डायरेक्शन इज दिस, सो आई हैव गॉट दिस 40. अगर मैं वी ए बी करूँ कि ए से बी की तरफ कितना चेंज हो रहा है, सो इट इज़ वी बी माइनस वी ए. अगेन आई चेंज द हेयर, इट इज़ द वेक्टर एडिशन करूँगा. वी ए मेरा एक्चुअल वी ए दिस डायरेक्शन में, माइनस वी ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड वी बी इज़ इन दिस डायरेक्शन. सो रिजल्टेंट विल बी, मैंने टेल टू टेल दोनों को ज्वाइन कर दिया, रिजल्टेंट विल बी डायगोनल ऑफ दिस. ओके, दिस इज थीटा, रिजल्टेंट विल बी डायगोनल ऑफ दिस. नाउ आई एम हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ बोथ, सो इट इज़ गोइंग टू मेक अ स्क्वायर. सो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, दिस. इसका रिजल्टेंट होगा दिस, एंड दिस थीटा विल बी tan theta will be this divided by this perpendicular to VA divided by VB. It is coming out to be 45 degree. Okay, so here apply the I need to find out this value VAB, so I apply this Pythagoras theorem. This is my 20, so I applied this and I've got this answer. Okay, so that's how you apply the addition and subtraction in vectors. इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे को. वेक्टर एडिशन, वेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर व्हेन वी हैव टू स्टडी. हमारे को मोशन स्टडी करने के लिए, इन 2D मोशन स्टडी करने के लिए वी विल यूजिंग वेक्टर्स अ लॉट.
वेक्टर्स का काफ़ी यूज़ होगा, हमारा वेक्टर एडिशन का काफ़ी यूज़ होगा. सो जस्ट कीप इन माइंड दीज थिंग्स. सो अनदर क्वेश्चन देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू आर है. अगर मैं इसको इस ऐसे चेंज करता हूँ a माइनस बी माइनस सी, सो देन व्हाट विल बी माई वेक्टर डायग्राम. सो a को मैंने ऐड किया, b को ऐड किया, c को सेम डायरेक्शन में. इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू एंड दिस इज माई रिजल्टेंट. अब मैंने क्या किया, a को ऐड किया, b की डायरेक्शन चेंज कर दी. b की पहले ये डायरेक्शन दी, मैंने डायरेक्शन ये कर दी. c की भी मैंने डायरेक्शन इधर की साइड कर दी. ठीक है. सो मेरा a ये है, सॉरी a मेरा इस डायरेक्शन में ये, ठीक है, ये सेम ए डायरेक्शन की पैरेलली शिफ्ट किया. b को मैंने अपोजिट कर दिया, b मेरा इस डायरेक्शन में गया. c को मैंने फिर से अपोजिट डायरेक्शन कर दिया, c. तो अब मेरा रिजल्टेंट, दिस इज माई रिजल्टेंट, दिस इज माई रिजल्टेंट. ये जो r है, दिस इज माई रिजल्टेंट. नाउ रिजल्टेंट इज दिस वन, नॉट दिस वन. ओके, इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स. क्लियर? So this set of questions also comes up, okay, when you change the direction, so how you will make a vector diagram. ठीक है. Next we will see the vector addition by analytical method. So यहाँ पे हम मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देखेंगे वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट निकालने का, जो कि हमारे क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ होगा. So when we add two vector, suppose मेरा a vector ये है, b vector ये है. So when we add these two vector with the triangle law, तो दोनों साइड इन द ऑर्डर है. थर्ड साइड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, जो कि फर्स्ट वेक्टर के स्टार्ट से सेकेंड वेक्टर के टिप तक जा रहा है. दैट इज माई रिजल्टेंट. रिजल्टेंट इज कमिंग आउट टू बी a प्लस b. दिस इज माई रिजल्टेंट कमिंग इन. ठीक है. रिजल्टेंट का डायरेक्शन मेरा अल्फा है फ्रॉम a. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, और आई नीड टू फाइंड आउट दिस अल्फा. ठीक है. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और अल्फा निकालना है मैंने. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? a प्लस बी. a प्लस बी का वेक्टर एडिशन और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है. ठीक है. वो कैसे निकालेंगे? नाउ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आई नो दिस इज माई 90 डिग्री. पाइथागोरस लगा देंगे. दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. सो यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज माई बी वेक्टर, दिस इज माई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अगर मैं पैरेलली इसको a को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मिनिमम एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला. सो दिस इज माई एंगल बिटवीन a एंड b. ठीक है. एंगल बिटवीन a एंड b is थीटा. सो थीटा ये हो गया. दिस इज माई b, दिस वर्टिकल इज माई b साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल इज माई b कॉस थीटा. नाउ टोटल बेस मेरा हो गया a प्लस बी कॉस थीटा, और हाइट हो गई मेरी b साइन थीटा. नाउ आई अप्लाई द पाइथागोरस. दिस प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस. So I apply the Pythagoras. A plus b cos theta का whole square plus b sin theta is equals to r square. This give me the result. R की जो resultant आ गया a square plus b square plus 2ab cos theta. This is my resultant. Okay, this is my magnitude of resultant. Now I have to see the direction of resultant. I have to find the direction. Direction from a निकालनी है मेरे को. That will be tan alpha मैं लूँ, तो tan alpha will be b sin theta divided by a plus b cos theta. ठीक है. tan alpha आ गया b sin theta divided by a plus b cos theta. ओके. सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मेरा ये आ गया एंड डायरेक्शन मेरा ये आ गया. ठीक है. r is what? My magnitude of vector addition of a and b. Now if I say कि if r की वैल्यू मेरी, if theta is my 0, theta 0 हो गया तो this is my b. ठीक है. theta 0 हो गया, this is my b. So this is just डायरेक्शन दोनों की सेम है. This is just the magnitude addition of a and magnitude addition of b. Simple magnitude addition of a, magnitude addition of b. So this is what it is saying. अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रख दूँ, what it's going to give me? a plus b, simple. a plus b का वेक्टर एडिशन सिंपल. ओके. सो रिजल्टेंट अगर मेरा a ये है, b ये है, तो रिजल्टेंट इज माई a plus b का सिंपल मैग्नीट्यूड एडिशन. दिस इज माई एट थीटा इज इक्वल टू 0. अगर थीटा मेरा 180 डिग्री है, a ये है, ठीक है, b ये आ गया, a b. अब रिजल्टेंट क्या हो गया मेरा? 0. बिकॉज दोनों वेक्टर का, और अगर दोनों वेक्टर सेम है तब रिजल्टेंट 0 होगा. अगर दोनों वेक्टर डिफरेंट है तो दोनों के मैग्नीट्यूड का माइनस कर दो. दैट इज गोइंग टू गिव मी द रिजल्टेंट. तो हेयर ऑल्सो आई अप्लाई. इफ आई पुट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस विल गेट a माइनस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर. सो रूट करेंगे तो इट विल कम आउट एज a माइनस बी. सो a माइनस बी का मॉड सिंपल. अगर मेरी ये वैल्यू 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, दिस विल गिव मी a 0. ठीक है. अगर ये a है, b ये है, नाउ इट इज़ जस्ट अ पाइथागोरस. दिस इज 90 डिग्री,
सो ये है बी है, सो इट इज़ जस्ट पाइथागोरस. अप्लाई, दिस इज माई ए स्क्वायर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर. सिंपल. अगर मैं यहाँ पे थीटा को 90 डिग्री पुट कर देता हूँ तो दिस टर्म विल गेट जीरो. और एंगल कितना आएगा? एंगल इज माई परपेंडिकुलर ओवर बेस, बी ओवर ए. दिस इज माई एंगल. Okay, vector addition by analytical method. I hope it is clear. Next we'll see subtraction. अगर मेरा आ जाए, अभी मैंने एडिशन किया था, this is my A and this is my B. If I'm adding it, this is my R. So what I'm getting it, A square. This is my this here in this I'm getting this diagonal of my parallelogram. अगर मैं B को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, this will be my B. So ये जो मेरा रिजल्टेंट आया है दैट इज़ अ डायगनल ऑफ दिस साइड्स, ए और बी की साइड्स का ये डायगनल आया है. ठीक है. नाउ अगर मेरे को बोला जाए ए माइनस बी का रिजल्टेंट बताओ, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है. तो वो कैसे निकालनी है? सो आई नो कि ए ये है, बी को मैंने पैरेलली शिफ्ट करके ये प्लस बी हो गया और इसकी अपोजिट साइड कर दी मैंने, ये माइनस बी हो गया. ठीक है. नाउ इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? ए और बी का एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा एंगल हो गया. ठीक है. ए और बी के बीच में मेरे को एंगल दे रखा था थीटा, दिस इज 180 माइनस थीटा. और दूसरा एंगल क्या हो गया? बड़ा एंगल. तो बड़ा एंगल हम नहीं लेते, हम लोग छोटा एंगल लेते हैं. सो दिस विल बी माई स्मॉल एंगल, तो दिस विल बी 180 माइनस थीटा. नाउ अप्लाई दिस 180 माइनस थीटा इनटू आवर प्रीवियसली डिराइव्ड इक्वेशन, दिस वन. थीटा की जगह आई जस्ट पुट 180 माइनस थीटा एंड सी द रिजल्ट. सो आई पुट 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा था. इट विल कम इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव. और 180 क्या होता है? फंक्शन सेम रहता है. सो कॉस थीटा रहेगा बट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है. यहाँ पे मेरा मॉड जो आ जाएगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा 10. अब मेरे को ये दिस एंगल निकालना है. सो अभी इन दोनों का, इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज दिस स्मॉल डायगोनल. ठीक है. पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल होते हैं ना. सपोज दिस इज माई पैरेललोग्राम, इसमें 2 डायगोनल होते हैं. दिस इज माई बिग डायगोनल जो कि इन दोनों के एडिशन से आता है, एंड दिस इज माई स्मॉल डायगोनल जो कि इन दोनों के सबसेक्शन से आता है. ए और बी के माइनस करेगा तो स्मॉल डायगोनल आएगा, और ए और बी का एडिशन करेगा तो बिग डायगोनल आएगा. तो यहाँ पे ये स्मॉल डायगोनल आ रहा है, दिस इज माई स्मॉल डायगोनल ए और बी का, जब मैं वेक्टर सबट्रैक्शन करता हूँ. अब एंगल कितना हो गया ये ए के साथ? दिस इज अल्फा 2. एंगल निकालने के लिए अगेन आई पुट थीटा इज 180 माइनस थीटा, इट इज़ बी साइन 180 माइनस थीटा, ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा. यहाँ पे साइन जो है 180 माइनस थीटा विल बी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इट इज़ बी साइन थीटा, बट यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा. ओके. कुछ एक क्वेश्चन है इन एनालिटिकल मेथड पे. अगर मेरे को ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आर दिया हुआ है, आई नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड आई नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. एंगल नहीं दे रखा, तो आर मुझे पता है इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. मुझे थीटा निकालना है. ए और बी मुझे पता है दैट इज इक्वल टू आर. आई जस्ट पुट द वैल्यू ए बी आर. इसको आर स्क्वायर, इसको आर से आर कट जाएगा दोनों जगह, आर से आर. तो आई clearly get the value of theta from this. I just put the value of a की वैल्यू को भी r रखना है, b की वैल्यू को भी r रखना है, और r की वैल्यू r है ही, दोनों साइड कट जाएंगे r, and I'll get the value of theta. यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि a और b का वेक्टर एडिशन अगर ये है, तो ये हमने देखा था एग्जांपल. अगर a और b का वेक्टर एडिशन सिंपल दोनों का इंडिविजुअल दोनों का मैग्नीट्यूड एडिशन है, तो क्या एंगल होगा, ये हमने देखा था इस वाले केस में. You see it in this case, in this case अगर a ये है और b ये है मेरा. ठीक है. अगर a ये है b ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इज दिस. ठीक है. तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है a और b के बीच में? 0 डिग्री. सिंपल. यहाँ पे जो रिजल्टेंट का एडिशन होगा दैट इज सिंपल एडिशन ऑफ दोनों के इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड एडिशन दोनों के, सिंपल. ठीक है. तो यहाँ पे मेरा थीटा आ जाएगा 0 डिग्री. ओके. अगर मेरा रिजल्टेंट ए प्लस बी का जो वेक्टर एडिशन है उसका मॉड इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल वेक्टर्स का मॉड का एडिशन है, तो दैट मीन्स यहाँ पे यहाँ पे जो एंगल आएगा दैट इज माई 0 डिग्री. ओके.
नाउ विल सी अनदर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को कि इफ़ आर इज़ परपेंडिकुलर टू ए, ये आर है रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है. आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू बिटवीन ए एंड बी एंड सच दैट आर इज such that this resultant is equals to b by 2, ठीक है. So a is this, b is this and resultant of this is coming at r, and जो a और r के बीच में एंगल है that is 90 degree, so it must be at some angle theta, ठीक है. So now this is b cos theta, I'll put it as an r, as b cos theta is equals to r. I'll put b cos theta is equals to r. आर की वैल्यू मुझे दे रखी है b by 2, ओके, एंड b मेरे को दोनों साइड से b कैंसिल हो जाएगा एंड थीटा विल बी 1 by 2 एंड आई एम गेटिंग थीटा इज 60 डिग्री एंड इट इज़ कमिंग 150 डिग्री ओवरऑल. ओके, क्लियर दिस थिंग. यू कैन यूज़ इट अपने इस तरीके से भी कर सकते हैं. You can apply this logic also, a square plus b square plus 2ab cos theta. इसमें भी if you apply, keep on putting this values, you will get the same answer. The easiest way is कि मुझे ये दे रखा है कि a और r के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो I have to find out कि रिजल्टेंट a और b के बीच में एंगल कितना होगा. Suppose my b is this at an angle theta, so my b cos theta is my r, b cos theta is my r, and r की वैल्यू मुझे दे रखी है b by 2. I'll put the value b by 2 and cos theta I've got 1, theta comes out to be 60 degree. Okay, so we'll see the last question of this section. We'll see the last question now. Suppose एक सर्कुलर पाथ पे बॉल इज मूविंग, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, नाउ इट्स वेलोसिटी गॉट चेंज टू v2. मेरे से पूछा गया व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम v1 टू v2. सो चेंज इन वेलोसिटी विल बी v2, डेल्टा v जो आएगा v2 माइनस v1, ठीक है. अब v1 मेरा इस डायरेक्शन में है, आई विल पुट v1 इनटू दिस डायरेक्शन एंड इन दोनों के बीच का जो मेरा ये आ जाएगा, दिस इज माई रिजल्टेंट वेलोसिटी r, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. So this value is given me theta, this is 90 degree. ये एंगल दोनों के, this is 60, this is 60, this is 60, this comes out to be 30 degree, and now angle between this, so angle between this direction and this direction is ये 30 degree है, ये मेरा 60 है, ये 90 है, तो that will be 30 degree. So 30 plus 30, it is going to give me, again I'll tell you, मेरा v की डायरेक्शन ये है ना, so I need to know the angle between this and this. So this and this angle मेरे को पता करना है, तो ये एंगल निकालने के लिए मैंने क्या किया, this is my 60 degree, 90, this is my 60 plus 90, 30 degree, okay. एंड दिस विल कम एज 60 डिग्री बिकॉज ये ओवरऑल 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल आ गया 60 डिग्री. नाउ आई नो रिजल्टेंट इज माई, दिस इज माई, मेरे को फाइनल चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा वी विच इज़ माई v2 माइनस v1, दैट इज़ माई चेंज इन वेलोसिटी. अब v1 मेरा इस डायरेक्शन में है, आई चेंज इट टू दिस डायरेक्शन और रिजल्टेंट मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, r. अब मुझे r का मैग्नीट्यूड निकालना है, दिस इज माई r, दिस इज़ माई v1, दिस इज़ माई माइनस v2. अब ये एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, v1 और v2 के बीच में 60 डिग्री है, इन दोनों के बीच में एंगल इज़ माई 120 डिग्री. अब आई अप्लाई द फॉर्मूला r इज इक्वल्स टू रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 120 डिग्री. आई अप्लाई दिस 120 डिग्री बिकॉज v1 और v2 के बीच में जो मेरा एंगल है दैट इज़ 120 डिग्री. आई अप्लाई दिस 120 डिग्री एंड v1 एंड v2 इज़ गिवन मी बोथ द मैग्नीट्यूड दे रखे हैं यहाँ पे. आई अप्लाई दोस मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, आई गेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है.
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. कल के लेक्चर में हम लोग यूनिट वेक्टर्स देखेंगे. आई विल सी द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड विल सी वेलोसिटी वेक्टर. कल के लेक्चर में ये सारी चीज़ें देखेंगे. तो आज के लेक्चर में विल जस्ट अ क्विक रिव्यू क्या क्या हमने पढ़ा. हमने स्टार्ट किया था कि वेक्टर्स क्या हैं, कि हमारे को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए. डायरेक्शन क्यों चाहिए? टू गेट सम डिज़ायर्ड फिजिकल इफेक्ट, कि डिज़ायर्ड प्रिडिक्टेड मैनर में मुझे आउटपुट चाहिए, तो मेरे को वेक्टर की ज़रूरत है. जैसा कि हमने इसमें देखा था, अगर ये ए बी को बुला रहा है तो इट हैज़ टू टेल कि किस डायरेक्शन में चल के आए. अगर उसने नहीं बताया तो बी के पास इतनी इनफाइनाइट डायरेक्शन में मूव करने के ऑप्शन हैं. इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. सो इट हैज़ टू स्पेसिफिकली, अगर उसको इसके पास बुलाना है, इट हैज़ टू स्पेसिफिकली टेल द डायरेक्शन. ओके, सो डायरेक्शन is important to study the vector. It will give you the, along with the magnitude, if we tell the direction, then only we get the desired physical effect. We have seen the difference between scalars and vector. Scalars में normal addition करते हैं हम ordinary rules of algebra से, but vector में we don't do that. Vector में we use parallelogram law of vector addition. So that is one of the key requirement for any physical quantity to be a vector. तो फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बनने के लिए तीन चीज़ें चाहिए: मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. इसके बिना देर आर सर्टेन क्वांटिटीज़ जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, बट दे फॉलो द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा. ठीक है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर और डायरेक्शन है देन वी कॉल इट एज अ वेक्टर. ओके, फिजिकल क्वांटिटी के पास वेक्टर कहने का हक तभी है जब वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहा है. ठीक है, देन ओनली वी कैन कॉल इट अ वेक्टर क्वांटिटी. सो नेक्स्ट में हमने देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. वी रिप्रेजेंट विद एन एरो एंड अ लाइन. जो ये होती है मैग्नीट्यूड बताती है, दिस एरो विल टेल द डायरेक्शन. फिर हमने देखा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे डायरेक्शन लेते हैं. वी सी द इक्वालिटी इन द वेक्टर, कि पहले अगर वेक्टर को मूव कर दूँ तो दैट वेक्टर विल बी इक्वल वेक्टर. देन वी हैव सीन कि एंगल क्या होता है दो वेक्टर्स के बीच में. वो मैं टेल टू टेल अगर ज्वाइन करता हूँ तो उन दोनों के बीच में जो मिनिमम वेक्टर होता है दैट इज़ माय वेक्टर बिटवीन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. देन वी हैव सीन द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि हाउ एडिशन ऑफ वेक्टर्स वर्क. सो एडिशन में हमने देखा कि हाउ ट्रायंगुलर लॉ एंड द पैरेललोग्राम वर्क्स. ट्रायंगुलर लॉ कहता है कि अगर मेरे दो वेक्टर हैं वो इन ऑर्डर अगर ट्रायंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो मेरा रिजल्टेंट होगा दैट शोज द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल मूविंग इन द अपोजिट ऑफ ऑर्डर. ठीक है, देन पैरेललोग्राम. और इसमें क्या होता है, वी जस्ट हैव टू ज्वाइन विद द टेल टू हेड. ओके, टेल टू हेड ज्वाइन करना होता है, सेकेंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के. और जो फाइनल मेरा रिजल्टेंट होगा दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर के, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर फ्रॉम द एंड द टिल द टिप ऑफ द लास्ट वेक्टर. सो दिस लॉ कैन बी अप्लाइड टू एनी पॉलीगन. किसी भी पॉलीगन में मैं ऐड कर सकता हूँ कि स्टार्ट यहाँ से किया और एंड उसके लास्ट वेक्टर के टिप तक किया, दैट इज गोइंग टू गिव मी द रिजल्टेंट. सो ट्रायंगुलर लॉ का हमने एक एक्सटेंशन कर दिया रेगुलर लॉ ऑफ रेगुलर पॉलीगन का वेक्टर एडिशन. सेकंड इज माय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम में क्या होता है, मेरे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, इन दोनों को मैं पहले टेल टू टेल ज्वाइन करूँगा. फर्स्ट आई ज्वाइन देम टेल टू टेल. इसको यहाँ पे पैरेलली मूव किया और जो इन दोनों का, ये दोनों मेरा नाउ पैरेललोग्राम की साइड रिप्रेजेंट कर रही हैं. अब इन दोनों का जो मेरा वेक्टर एडिशन होगा दैट इज द डायगोनल. ओके, दिस इज दिस डायगोनल इज द वेक्टर एडिशन ऑफ ए एंड बी. ओके, फिर हमने देखा सब्ट्रैक्शन में हम कुछ नहीं करते, इट्स जस्ट एन एडिशन. लेकिन जो माइनस वाला है उसको वी जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट. तो अगर मेरा बी की डायरेक्शन ये है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ बी टू दिस, एंड नाउ ये दोनों रिप्रेजेंट वेक्टर, दोनों रिप्रेजेंट पैरेललोग्राम की साइड कर रही हैं. अब इन दोनों का जो डायगोनल बनेगा दैट इज गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी. ठीक है, सो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज इन 180 माइनस जो इनके बीच में एंगल है थीटा. ओके, दिस इज माय पॉलीगन लॉ. इट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ. देन वी हैव सीन थ्री प्रॉपर्टीज के दो अनइक्वल वेक्टर कैन नॉट बी जीरो, थ्री कोप्लानर वेक्टर कैन बी जीरो इफ इट्स साइक्लिक और नॉन जीरो, and then three non-coplanar vector cannot be zero. Then we have seen the properties of vector addition, कि commutative and associative. commutative property है किसी भी ऑर्डर में हम लोग वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, a प्लस बी इजिकल्स टू बी प्लस ए. और ग्रुपिंग भी हम किसी भी में, अगर तीन वेक्टर है तो आई कैन ग्रुप a प्लस बी और आई कैन ग्रुप b प्लस सी और फिर उसका एडिशन करूँ. आई कैन डू इट इन बोथ द मैनर, बोथ विल गिव मी द सेम आंसर. Then we have seen certain questions. Then here we have seen the analytical method of vector
मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देखा था, तो यहाँ पे अगर मेरे को आर का मैग्नीट्यूड चाहिए और एंगल चाहिए तो हाउ वी हैव फाइंड इट आउट। आर का मैग्नीट्यूड आता है मेरा, अगर मेरी दो साइड्स हैं ए और बी, इफ़ माई टू साइड्स ए ये है, बी ये है, इफ़ माई टू साइड एंड दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट जो आएगा दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, जो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, दैट इज़ व्हाट। और टेन अल्फा क्या आएगा मेरा, टेन अल्फा इज़ माई दिस बी साइन थीटा, दिस बी साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर दिस टोटल बेस ए प्लस बी कॉस थीटा। और अगर मेरा थीटा की वैल्यू ये एंगल 0 है, दैट मीन्स बी ए हो गया, दिस इज माई बी, दिस इज सिंपल एडिशन ऑफ, बिकॉज दोनों के डायरेक्शन सेम है, आई कैन ईजिली ऐड देयर इंडिविजुअल वेक्टर्स, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। ओके, अगर इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। नाउ इन दोनों की अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो माई फाइनल रिजल्टेंट विल बी ए माइनस बी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड का बस माइनस कर दिया मैंने, ए माइनस बी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर 10 ये है और इधर की साइड मेरी 5 है, अगर मैं इन दोनों का वेक्टर एडिशन करता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी 10 5 इन दिस डायरेक्शन। सिंपल मैंने मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लिया। अगर मेरा 10 ये है एंड 5 ये है, ठीक है, नाउ आई कैन नॉट डू लाइक दिस, आई हैव टू टेक द दिस वेक्टर विल बी देयर, सो आई हैव टू डू इट 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10, और इन दोनों के बीच में जो भी कॉस थीटा एंगल है, दिस इज माई रिजल्टेंट ऑफ दिस। ओके, नाउ अगर 90 डिग्री इन दोनों के बीच में एंगल है, सो दिस मीन्स ए ये हो गया, बी ये हो गया, सो इट इज़ जस्ट अ पाइथागोरस ट्राइंगल 90 डिग्री वाला। सो दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस स्क्वायर कर दिया मैंने, बी ओवर ए, दिस इज माई एंगल थीटा एंड दिस थीटा विल बी 0, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माई रिजल्टेंट। सब्ट्रैक्शन में मैंने देखा कि बी मेरा अगर ये है, ए ये है, बी को अगर मैंने ए माइनस बी करना है तो बी की डायरेक्शन चेंज हो गई। नाउ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज दिस, ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, 180 माइनस थीटा। अब नाउ दिस 180 माइनस थीटा आई पुट अप इन दिस इक्वेशन एंड दिस विल यील्ड मी दिस रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, 10 अगर इन दोनों का, दिस इज माई अल्फा टू एंड दिस इज माई अल्फा वन। अल्फा वन इज द एंगल बिटवीन ए प्लस बी, a vector plus b vector, or alpha 2 is the angle between resultant of a and minus b vector. So this is, I just have to put in the previous formula cos theta की value 180 minus theta. These are the questions that we have seen on this analytical form. So this is what we have done for today's lecture in vectors. So now we'll meet up in the next lecture of vectors, where we are going to study units, unit vector and position vector, displacement vector. So all those things we are going to study in the next lecture. So thank you.